So, sir, at the Department of Communication, Development, Communication and Extension and Journalism, every year we have Comscape 2000. At this occasion, I'm absolutely delighted to have you with us. And I welcome Mr. Sudhir Chaudhary, the CEO and Editor-Chief at Zee News. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yeah. And we have all students, we have all seen him at Prime Time, at Daily News and Analysis program. He is not only a very popular TV anchor, journalist, and an editor, and that too editor-in-chief, but he also been recipient of Ramnath Goenka Award for Journalism. So we are very happy to have you with us. So straight away, sir, shall we go on to the insights into the working of the TV news industry and your experiences as a first generation TV journalist? Thank you so much, ma'am. Thank you so much, and I'm extremely delighted. I'm extremely happy to be part of this conversation today with the young minds of Delhi University. And it's very important for this young generation to know the right facts about journalism, how newsrooms function world over, not just in India, and all kinds of professional nitty-gritties. What kind of situations we face every day while working in newsrooms. What are the extreme situations a journalist or a TV anchor faces. So, hello to everyone once again. Can I take this liberty of speaking in Hindi? Please, sir. You can say in anything. Mixture also. Everybody understands Hindi here? Yeah. Yes. Okay. So, in fact, today's day is very, very interesting and very, very special, and you will later on find this mention when the history of TV news industry will be written in future. Because from today, BARC has taken a very big, very drastic step of stopping TRPs for news channels for 12 weeks. It's a very, very big step. तो आज हम लोग जिस समय बात कर रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले आप सबको पता होगा BARC is the sole agency which calculates and releases TRPs for all the television channels in India, and this TRP is the only currency, is the only business currency which is being used in TV industry. So जैसा आप सबको पता है टीवी इंडस्ट्री इस समय हमारे देश में लगभग 32,000 करोड़ की इंडस्ट्री है. न्यूज इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हर साल लगभग 3600 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, 3600 करोड़ की. पहला कंपैरिजन हमें ये देखना चाहिए कि एक टोटल टीवी इंडस्ट्री जो 32,000 करोड़ की है उसमें से न्यूज इंडस्ट्री सिर्फ 3,500 करोड़ की है. यानी न्यूज इंडस्ट्री टीवी इंडस्ट्री के मुकाबले काफी छोटी है, बट इट्स स्टिल एक्सपेंडिंग और मुझे उम्मीद है कि वो और आगे एक्सपेंड करेगी. लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूज इंडस्ट्री 3600 करोड़ की है या टीवी इंडस्ट्री 32,000 करोड़ की है, इसका मतलब ये है कि कितना पैसा एडवर्टाइजर्स इस इंडस्ट्री के ऊपर खर्च कर रहे हैं और एडवर्टाइजर्स किस अनुपात में, किस रेशो में किस चैनल के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, उसके लिए एक करेंसी का निर्माण हुआ था जिसको कहते हैं हम टीआरपी. टीआरपी मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स. और जिस तरह लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, जिस तरह नेता ज्यादा से ज्यादा वोट पाना चाहते हैं, जिस तरह एक क्रिकेट खिलाड़ी जो बैट्समैन होता है वो ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहता है और एक बॉलर ज्यादा से ज्यादा विकेट्स लेना चाहता है, जिस तरह आप सब जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं, उसी तरीके से टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जो मेरे जैसे लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा टीआरपीज लेना चाहते हैं. मतलब मेरी जो मेहनत की कमाई है हर हफ्ते की वो ये है कि मेरे चैनल को कितनी टीआरपी मिली. और जब वो टीआरपी, बिकॉज दीज टीआरपीज आर मोनेटाइज्ड, दिस इज द करेंसी,
उस टीआरपी के आधार पर फिर हमें हमारे एडवर्टाइजर से पैसा मिलता है, और हमारी मार्केट में क्या प्राइसिंग होगी, हम सस्ते में बेचेंगे महंगा बेचेंगे, वो तय होता है कि हमारी टीआरपी कितनी है, और उस टीआरपी के आधार पर यह तय होता है कि किस चैनल का कितना मार्केट शेयर है। सो एज अ बिजनेस, बिकॉज आप सब जानते हैं कि ये इट्स अ बिजनेस, एक न्यूज चैनल में या एक मीडिया हाउस में, अगर मैं जी न्यूज की बात करूं, जी न्यूज में लगभग 2,500 लोग काम करते हैं। 2,500 लोगों की सैलरी देनी होती है, 2,500 लोगों को अपने करियर में और आगे बढ़ना है, और न्यूज गैदरिंग के खर्चे होते हैं। तो आप एक पूरी कंपनी चलाते हो, और उसके लिए आपको कमर्शियली वायबल होने की पूरी आवश्यकता है, जरूरी है, तभी आप कर पाएंगे। तो उसके लिए जो आज हमारे पास मार्केट शेयर है, वही हमारा मोनेटाइज होता है, और उसी के आधार पर हम लोग पैसा कमाते हैं। और फिर कोई भी कंपनी, किसी भी और कंपनी की तरह हमारी न्यूज जो इंडस्ट्री है वो भी इसी तरह आगे बढ़ती है। आप सब जानते हैं कि पीछे कई महीनों से ये जो टीआरपीज जो हैं, ये काफी विवादों में रही हैं। न्यूज चैनल को कैसा कैसा होना चाहिए, कैसी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, न्यूज की लक्ष्मण रेखा क्या है, एक एंकर की लक्ष्मण रेखा क्या है, ये इसको लेके बहुत सारे डिस्कशन हमारे देश में चल रहा है। एंड आई एम श्योर आप सब लोग जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके घर में भी ये डिस्कशन जरूर चलता होगा न्यूज चैनल्स के बारे में। और मुझे स्वीकार करने में कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं लग रहा है, शर्मिंदगी नहीं हो रही है कि न्यूज चैनल्स की जो इमेज है हाल के दिनों में काफी खराब हुई है, और हमें पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा शिकायतें मिलती हैं अपने कंटेंट को लेकर, हम जिस तरह की स्टोरीज दिखाते हैं उसको लेकर। एज अ इंडस्ट्री, एज अ होल मैं बात कर रहा हूँ इस समय। और हम बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं, हमें इस तरह का फीडबैक देते हैं कि सारे दिन एक लाल रंग की पट्टी पर ब्रेकिंग न्यूज चलता रहता है। वो ब्रेकिंग न्यूज है भी या नहीं, ये भी, इस पर भी मतभेद होते हैं। यानी न्यूज चैनल समझते हैं कि ये ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं, आम जनता, ये समझती है कि ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। तो हमसे कहते रहते हैं कि आप सारे दिन क्या एक ही खबर चलाते रहते हैं, सारे दिन एक ही न्यूज चलती रहती है, ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती है। या आप समझिए कि आजकल एक फैशन है फास्ट न्यूज का, फटाफट न्यूज का, बस हर चैनल जब भी आप खोलें तो फटाफट न्यूज उस पर चलती रहती है। या फिर ऐसे डिबेट्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही वायलेंट डिबेट्स होते हैं, हिंसक डिबेट्स होते हैं, उसमें एक दूसरे का अपमान हो रहा है, उसमें लोग चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है आपको एक दूसरे से लड़ाई करते हुए, फिजिकली हाथापाई करते हुए भी लोग मिल जाएंगे थोड़े दिनों के बाद, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। हालांकि पहले भी इस तरह के डिबेट्स आपने देखा होगा, टीवी पर चलता रहता है। तो इस समय ये जो इंडस्ट्री है, ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम से गुजर रही है, और चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। सबसे जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये कि न्यूज इंडस्ट्री, न्यूज, ये विश्वास पर चलती है। इसलिए किसी भी पत्रकार के लिए, न्यूज चैनल के लिए, अखबार के लिए विश्वसनीयता बहुत जरूरी है। लोग उसके पास इसलिए आते हैं कि वो विश्वसनीय है। अगर उसने एक बार आपको एक खबर दे दी, इसका मतलब वो खबर, वो जानकारी, सूचना पत्थर की लकीर होनी चाहिए। तो लोग हमारे पास क्यों आते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के पास? इसलिए आते हैं कि उन्हें सूचना चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसलिए आते हैं, वहां जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि उन्हें सही सूचना, सही इंफॉर्मेशन मिलेगी, और उस इंफॉर्मेशन को उन्हें दोबारा क्रॉस चेक करने की आवश्यकता उनको नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो अपने जिस भी मीडिया हाउस को वो विश्वसनीय समझते हैं, वहां जाते हैं और उससे वो खबरें सुनना पसंद करते हैं। इसमें मीडिया हाउस भी होते हैं, इसमें कुछ लोगों को कुछ खास एंकर्स अच्छे लगते हैं, इसलिए वो उन एंकर्स के साथ ज्यादा अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस इंडस्ट्री से वो विश्वसनीयता कम हुई है। और विश्वसनीयता कम इसलिए हुई है क्योंकि जिस मकसद के साथ हमने न्यूज शुरू की थी, या जिस मकसद के साथ लोग पहले न्यूज देखने के लिए आते थे, मतलब इंफॉर्मेशन, सूचना, और उसके बाद उस सूचना का, आप कह लीजिए, एनालिसिस, विश्लेषण, कि इस सूचना को मैं किस नजरिए से देखूं। ये जो सूचना मुझे मिली है, ये जो फैसला आज नया हुआ है, मान लीजिए कोई भी नया फैसला होता है, ये मेरे पक्ष में है या ये मेरे विपक्ष में है, ये मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए खराब है,
इसका मुझ पर, मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका मेरे परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो मैं उससे कैसे बचूं, और अगर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तो उस अच्छे प्रभाव का ज्यादा से ज्यादा लाभ मैं कैसे ले सकता हूं। ये एक न्यूज चैनल का मकसद होना चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे न्यूज चैनल्स आपको सूचना, जानकारी और खबर देने के साथ साथ आपका मनोरंजन भी करने लगे, और लोगों को धीरे धीरे न्यूज चैनल्स पर मनोरंजन देखने की आदत पड़ गई, और लोगों को भी यह अच्छा लगने लगा। और अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग आजकल कहते हैं कि जो न्यूज चैनल है वो बेसिकली रियलिटी एंटरटेनमेंट चैनल है, और आपको उसमें मनोरंजक तरीके से दिखाई गई खबरें ज्यादा आपको दिखाई देती हैं, और सूचनाएं उसमें धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। डिबेट्स भी जो होते हैं शाम को, प्राइम टाइम डिबेट्स, उनमें भी सूचना कम होती है और थिएट्रिक्स ज्यादा होते हैं, मतलब नाटक थोड़ा ज्यादा होता है, मनोरंजन ज्यादा होता है। तो बहुत सारे लोग अब न्यूज चैनल्स अपने मनोरंजन के लिए देखने के लिए आते हैं कि चलिए देखते हैं आज किसकी इंसल्ट होगी, देखते हैं आज किसको क्या कहा जाएगा, और 2 4 10 लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत एंटरटेनिंग सब्जेक्ट हो जाता है। तो लोगों को शायद अच्छा लगने लगा। अच्छा क्यों लगने लगा? क्योंकि न्यूज चैनल्स में जब लोगों ने देखा कि इसकी टीआरपी आ रही है, मतलब जब मैं जितना सस्ता कंटेंट दिखाता हूं मेरी टीआरपी उतनी बढ़ जाती है, तो लोगों को लगा कि मैं और ज्यादा सस्ता कंटेंट दिखाऊं तो मुझे टीआरपी और ज्यादा बढ़ेगी, उससे मेरा मार्केट शेयर बढ़ेगा और शायद मैं मार्केट लीडर हो जाऊंगा। और इसी तरह धीरे धीरे सब चैनल आपको ये दावे करने लगे कि मैं नंबर वन हूं, मैं नंबर वन हूं। और अभी ऐसी स्थिति है कि आप जिस भी चैनल पर जाएंगे सब न्यूज चैनल्स आपको यही कहेंगे मैं नंबर वन हूं। और दर्शक को समझ में नहीं आता कि असल में नंबर वन कौन है, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि मैं नंबर वन हूं। लेकिन मैं आपको आज थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं। मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री, क्या न्यूज इंडस्ट्री में लगभग 26 26 27 साल हो गए। और जब इस देश में पहला चैनल आया था तो उस पहले टीवी चैनल में जो पहले लोग जुड़े थे, जिन्होंने जीवन में और इस देश में पहली बार किसी टीवी चैनल में काम किया था और टीवी को समझा था, उन लोगों में मैं शामिल हूं। तो जो पहला, आप समझ लीजिए कि जो पहला न्यूज ब्रॉडकास्ट हुआ होगा इस देश में, उस न्यूज ब्रॉडकास्ट में कहीं ना कहीं मैं भी था। लेकिन जब टीवी इंडस्ट्री शुरू हुई हमारे देश में 92 93 और 94 के दौरान, तब सिर्फ जी टीवी अकेला पहला सैटेलाइट चैनल होता था। उस समय तक ना तो ये इंडस्ट्री थी, क्योंकि इंडस्ट्री तब बनती है जब उसमें एक साथ कई प्लेयर्स आ जाते हैं, तब इंडस्ट्री बनती है। तो तब एक दूरदर्शन हुआ करता था और एक जी टीवी आया था। उस समय 2 ही चैनल थे, और लोग कहते थे कि जी टीवी चलेगा नहीं, फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि इस देश में पैसा देकर टीवी देखना लोगों को कभी समझ में नहीं आया कि कोई पैसा देकर भी टीवी देख सकता है, क्योंकि दूरदर्शन मुफ्त में सब सारे प्रोग्राम्स दिखाता था। तो उस समय आपको विज्ञापन जो मिलेंगे, क्योंकि हमारी जो इनकम थी उसका एकमात्र आधार है विज्ञापन। तो विज्ञापन किस आधार पर आएंगे, जो कंपनियां हैं वो आपको किस आधार पर विज्ञापन देंगी, उस विज्ञापन की प्राइसिंग कैसे डिसाइड होगी, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और उस समय ये टीआरपी वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि चैनल ही एक था। तो हमारे जो संस्थापक हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जब हमने अपनी एक सेल्स टीम रखी और सेल्स टीम ने कहा कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, पहली बात तो ये कि टीवी पर पहली बार विज्ञापन देना अपने आप में एक बड़ी बात थी। लोगों ने सोचा ही नहीं था कंपनियों ने कि टीवी पर विज्ञापन दिया जा सकता है, तो किसी के पास कोई एड फिल्म बनी हुई नहीं थी। तो हम लोगों ने उनको पहली बार ये आइडिया दिया कि हम आपकी एड फिल्म भी बना के देंगे आपको, और आपको अपना प्लेटफॉर्म भी देंगे ताकि आपका विज्ञापन चले। तो लोगों ने पूछा कि हम आपका चैनल कितने लोग देखते हैं। अब ये तो हमें भी नहीं पता कि हमारा चैनल कितने लोग देखते हैं, क्योंकि कोई मेजरमेंट एजेंसी या टूल था ही नहीं उस समय। तो उस समय हम जब अपना प्रोग्राम खत्म करते थे तो अपना एक पता दर्शकों को देते थे, जिसमें पोस्ट बॉक्स नंबर एक देते थे और कहते थे अगर आपका कोई फीडबैक है, अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कैसा लगा हमारा कार्यक्रम, आप हमें लिख कर भेजिए, ऐसा हम अपने दर्शकों से कहते थे। और अपना नंबर देते थे, मतलब पोस्ट बॉक्स नंबर, और लोग हमें चिट्ठियां लिखते थे, पोस्ट कार्ड लिखते थे।
तो धीरे 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 जी टीवी में हजारों की संख्या में पोस्ट कार्ड आने लगे, देश भर के अलग अलग कोनों से पोस्ट कार्ड आने लगे, और लोग लिखते थे, अपना फीडबैक भी देते थे और सजेशंस भी देते थे कि और हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे जो संस्थापक थे उन्होंने सबसे पहले उन पोस्ट कार्ड्स को संभाल के रखना शुरू किया, और रीजन के हिसाब से, जैसे नॉर्थ इंडिया से जितने आए हैं उनको एक अलग पैकेट में रखा, साउथ इंडिया से आने वालों को अलग पैकेट में, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया से आने वालों को अलग पैकेट में, रीजन के हिसाब से रखा। और फिर सेल्स टीम को वो पोस्ट कार्ड्स दिए सारे, इतने मतलब हजारों की संख्या में पोस्ट कार्ड थे। और वो कहने लगे कि जब आप अपने किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जाएंगे और वो आपसे जब ये सवाल पूछेगा कि आपके चैनल को कितने लोग देखते हैं, तो आप ये पोस्ट कार्ड्स दिखाइएगा उनको और बताइएगा कि देखिए इतनी जगहों से हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में पोस्ट कार्ड आते हैं, इसका मतलब लोग देख रहे हैं। ये जो तरीका था ये ऑर्गेनिक तरीका था, ये सिंपल था, प्योर था, इसमें कोई छल कपट नहीं थी, इसमें कोई सैंपल साइज वाले अंदर कंडीशंस नहीं लगी हुई थी। तो यहां से इस चीज की शुरुआत हुई। धीरे धीरे फिर एक के बाद दो चैनल आए, 3 4 5 चैनल चलते, ज्यादा ज्यादा चैनल्स आते चले गए, और फिर ये एक उद्योग बना, मतलब एक पूरी इंडस्ट्री की शेप इसमें इन्होंने ले ली टीवी ने। और फिर बड़ी संख्या में जो विज्ञापन देने वाली कंपनियां उनकी भी संख्या बढ़ने लगी। उसके बाद वो ये जानना चाहते थे, मैं आपको टीआरपी का एक बैकग्राउंड बता रहा हूं कि ये क्यों आई। मान लीजिए एक कंपनी है जो हवाई चप्पल बनाती है और पंजाब में बेचना चाहती है। वो कंपनी ये जानना चाहती है कि पंजाब में हवाई चप्पल खरीदने वाला जो मेरा क्लाइंट है, यानी लोअर मिडिल क्लास मान लीजिए, वो कौन सा चैनल देखता है, मैं ये जानना चाहता हूं। तो क्या कोई ऐसी एजेंसी है जो मुझे बता सके कि पंजाब में हवाई चप्पल खरीदने वाला दर्शक कौन सा चैनल देखता है, और मध्य प्रदेश में पान मसाला खाने वाला दर्शक कौन सा चैनल देखता है, और उत्तर प्रदेश में एक रंगीन टीवी जो खरीद सकता हो 25,000 रुपए का, वो जो दर्शक है वो कौन सा चैनल देखता है। तो तब ये एजेंसीज आई, मार्केटिंग एजेंसीज, और इन्होंने जो व्यूअरशिप डेटा था उसको बाइफरकेट करके अलग अलग चैनल और अलग अलग एडवर्टाइजर्स को केटर करना शुरू किया। और मुझे जो याद पड़ रहा है, just a second, PP, can you switch off your volume please? PP, can you switch off your volume? Yes ma'am. या तो 1997-98 के आसपास ऐसा हुआ जब सेल्स टीम्स जो है वो न्यूज रूम में पहली बार उन्होंने प्रवेश किया, और न्यूज रूम में जो जर्नलिस्ट थे, जो न्यूज बनाते थे, उनको ये कहना शुरू किया कि हमारी टीआरपी इस स्टेट में ज्यादा है, इस स्टेट में कम है, आप इस स्टेट की खबर थोड़ी सी ज्यादा चला दीजिए क्योंकि हमारे पास एक क्लाइंट आया हुआ है जो कि इस स्टेट स्पेसिफिक हमें पैकेज देना चाहता है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन द सेल्स टीम entered into the newsroom. उससे पहले they always used to be a Chinese wall between the newsroom and the sales department and the marketing department. और धीरे 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 ये चाइनीज वॉल टूटने लगी, और आज की स्थिति ये है कि आज न्यूज रूम्स में जब डिसाइड होता है दिन का एजेंडा या पूरे हफ्ते का एजेंडा, वो टीआरपी के मॉडल के हिसाब से डिसाइड होता है कि किस खबर में ज्यादा टीआरपी है, किस खबर में कम टीआरपी। और आप लोगों ने बहुत, अगर आप इफ यू आर ऑब्जर्विंग न्यूज चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स वेरी केयरफुली, तो आप देखेंगे कि सारे न्यूज चैनल्स में लगभग एक जैसी ही खबर चलती है, लगभग एक जैसी ब्रेकिंग न्यूज चलती है, लगभग एक जैसी हेडलाइंस चलती हैं। और हमारे न्यूज में, इंडस्ट्री में अलग अलग दौर आते हैं। कभी आप देखेंगे जैसे आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें फास्ट न्यूज का दौर है, सब न्यूज चैनल्स आपको फास्ट न्यूज दिखाते हैं। कोई कहता है 5 मिनट में 50 खबरें, कोई कहता है 5 मिनट में, फिर दूसरा आता है वो कहता है मैं 5 मिनट में 100 खबरें दिखाऊंगा, फिर तीसरा आ जाता है नहीं मैं 5 मिनट में 200 खबरें दिखाऊंगा। ये जो चीज है ये अभी नई चल रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि कभी आतंकवाद की खबरें ज्यादा आने लगती हैं, कभी कॉमेडी शोज ज्यादा आने लगते हैं, कभी एक दौर ऐसा भी आया था जब पूरे न्यूज चैनल्स पर सिर्फ क्राइम के शोज छाए रहते थे, और क्योंकि उस समय क्राइम के जो शोज थे उन पर बहुत टीआरपी आती थी। सो
टीआरपी इज अ करेंसी, लेकिन जो चिंताजनक बात है वो ये है कि हम जब अपनी टीम से, जैसे मैं अपनी टीम से जब एक सवाल पूछता हूं, हु इज योर क्लाइंट, एक न्यूज चैनल का क्लाइंट कौन है, तो उसके दो तरह के जवाब आते हैं। इफ यू आस्क द सेल्स टीम, तो सेल्स टीम कहती है कि माय क्लाइंट इज द एडवर्टाइजर, मतलब एक न्यूज चैनल का जो क्लाइंट है वो उसका एडवर्टाइजर है, जो विज्ञापन देता है। जो मेरे चैनल पर विज्ञापन दे रही है कंपनी, उसको सेटिस्फाई होना चाहिए और उसको पूरी प्रॉपर सर्विस मिलनी चाहिए। दूसरा इसका जवाब हो सकता है कि मेरा क्लाइंट है मेरे दर्शक। मेरे दर्शक पूरी तरीके से संतुष्ट होने चाहिए और मुझे मेरे दर्शकों के साथ न्याय करना चाहिए। अगर मैं मेरे दर्शकों के साथ न्याय करता हूं तो वो मुझे देखते हैं, और उनके देखने की वजह से उनकी जो ये अटेंशन स्पैन है, इसको मैं मोनेटाइज करता हूं अपने एडवर्टाइजर्स के लिए। तो मेरी निजी राय यह है कि किसी भी पत्रकार का, एंकर का या न्यूज चैनल का जो सीधा जो क्लाइंटेल है, जो उसका पहला क्लाइंट है, वो है उसके दर्शक। तो हमें हमारी जो पहली जवाबदेही है वो एडवर्टाइजर्स को नहीं है, वो हमारे दर्शकों को है। और हमारे दर्शकों को एक एक्सपीरियंस मिलना चाहिए कि अगर मैं ये न्यूज चैनल देखता हूं तो मुझे इसमें हर चीज देखने को मिल रही है। मैं खुद ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं आप सबके सवालों के ज्यादा जवाब देना चाहता हूं, लेकिन बात खत्म करने से पहले एक और आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा मैं सुनाना चाहता हूं। 2014 और 15 में हम लोगों को ऐसा लगा जैसे हम लोग भटक रहे हैं। ये वो समय था जब न्यूज चैनल्स की भीड़ लग गई थी और सारे न्यूज चैनल्स एक जैसे ही दिखते थे। तब हमारी जो कोर टीम थी, विच वॉज लेड बाय आवर चेयरमैन एंड प्रमोटर डॉक्टर सुभाष चंद्रा, उन्होंने एक बार हमसे कहा कि मैं खुद बहुत लॉस्ट महसूस कर रहा हूं कि हमारा उद्देश्य क्या है और अब हम आगे कहाँ जाना चाहते हैं। हमने ये न्यूज चैनल क्यों चला के रखे हैं, हम क्या कर रहे हैं इनके साथ, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमने जब ये पूरी जब हम चर्चा कर रहे थे, ये आई कि हमारा वे फॉरवर्ड कौन तय करेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों में आपने देखा होगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट पढ़े हुए लोग आते हैं, सीईओज आते हैं, वो एक बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बिजनेस प्लान बनाते हैं, और फिर वो कंपनियां चलती हैं। चाहे वो चॉकलेट बनाने वाली कंपनी हो, बिस्किट बनाने की कंपनी हो, गाड़ी बनाने वाली कंपनी हो, ये सब इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को बनाना। बट दे ऑलवेज स्टडी देयर कस्टमर्स। कस्टमर्स की नीड क्या है, कस्टमर्स क्या चाहते हैं। इस समय हम अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा फीचर्स अपनी गाड़ी में कैसे दे सकते हैं, और सबसे कम दामों पर। लेकिन क्या न्यूज चैनल्स भी इस तरह की बातें करते हैं कि मेरा कस्टमर मुझसे क्या चाहता है, यानी मेरा दर्शक क्या चाहता है। तो मुझे याद नहीं पड़ रहा कि कभी भी कोई न्यूज चैनल की टीम लोगों से सीधे मिलने के लिए उनके घर गई हो और उनसे उन्होंने पूछा हो कि आप क्या चाहते हैं। तो हम लोगों ने अपनी एक कोर टीम तय की और हम लोगों ने पूरे भारत का भ्रमण किया। पूरे भारत में हम लोग शहरों में गए, गांवों में, कस्बों में गए, और फिर और अंदर छोटे गांवों में गए। और हमने उसमें अपर मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोगों से बात की, यानी डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन से बात की। फिर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से बात की, और जो सबसे नीचे का जो तबका था उससे भी बात की। जैसे अगर मैं दिल्ली की मैं बात करूं तो हमने दिल्ली में अलग अलग लोगों से अपनी अपॉइंटमेंट्स फिक्स की। तो मैं एक धोबी से मिलने भी गया, एक ड्राइवर से मिलने भी गया, एक जो दिहाड़ी पर मजदूरी करता था आदमी, उससे भी मिला, उसके घर जाके। एक ठेला लगाने वाला आदमी था, उससे भी मिला, और एक बहुत बड़े डॉक्टर से भी मिला, वकील से भी मिला, और एक कॉलेज के प्रोफेसर से भी मिला। और उन सबसे हमने पूछा आपके लाइफ के रिदम क्या है। यानी मुझे मेरे चैनल की एफपीसी, एफपीसी होता है ना, यानी मेरे चैनल का जो पूरा स्केड्यूल है कि सुबह क्या आएगा, उसके बाद क्या प्रोग्राम आएगा, उसके बाद क्या प्रोग्राम आएगा, ये तय करने से पहले क्या मैं अपने दर्शकों के जीवन की रिदम को समझता हूँ, मेरे दर्शक कितने बजे क्या करते हैं। तो ये बहुत बड़ा लूप होता। हम गए, हमने लोगों से पूछा, और हमने उसको पूरे 5-6 वर्गों में बांटा। जैसे स्टूडेंट्स, यूथ, प्रोफेशनल्स, सीनियर सिटीजन्स, महिलाएं, गृहिणियां, किसान। तो इन सारे वर्गों से जब हम देखते हैं तो क्या एक गृहिणी के लिए न्यूज चैनल में क्या है, एक स्टूडेंट के लिए न्यूज चैनल में क्या है, एक किसान के लिए न्यूज चैनल में क्या है, एक प्रोफेशनल जो है उसके लिए न्यूज चैनल में क्या है। तो हमने ये सब देखने की कोशिश की, तो हमें ये पता चला कि एक्चुअली इन सब लोगों के लिए किसी न्यूज चैनल में कुछ नहीं है।
आप अपना इनकम टैक्स कैसे बचा सकते हैं, ये न्यूज चैनल आपको नहीं बता रहा है। एक छात्र को स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है, न्यूज चैनल नहीं बता रहा है। एक छात्र जो अब कॉलेज से बाहर निकल गया, उसे रोजगार कैसे मिल सकता है, ये न्यूज चैनल नहीं बता रहा है। एक गृहिणी जो ये जानना चाहती है कि टर्की में क्या हो रहा है, या वो अपने काम की कोई और खबर जानना चाहती है, उसको खबर नहीं मिल रही है। एनीवे, हम लोग गए और हम इन सब लोगों से मिले और हमने इनका जो पूरा फीडबैक था वो लिया। उसमें हमने डीप डाइव किया, उसका विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, और धीरे 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 हम अपने जी न्यूज में कुछ चेंजेस लेकर आए। जो मेरा शो आप देखते हैं डीएनए, वो शो मैंने, उस शो में बहुत भारी तरीके से मैंने तब्दीलियां की, ये सारा फीडबैक लेने के बाद। और अगर आपने देखा होगा कि मेरा जो शो है, मैं उसमें कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा फैमिली व्यूइंग उसमें अपने साथ जोड़ूं। वो शो मेल मेंबर ऑफ द हाउस के लिए नहीं है। एक न्यूज चैनल्स की खास बात ये भी है, जो टीआरपी मॉडल है जिसको सब लोग क्रैक करना चाहते हैं, वो ये कहता है कि घर में जो आपका परिवार है, उसमें जो आपके हेड ऑफ द फैमिली मेल, यानी अगर जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, यानी आपके फादर, वो हेड ऑफ द फैमिली हुए, वो सब लोग न्यूज देखते हैं। मेल्स हु आर 25+, 35+, एंड हु आर द डिसीजन मेकर्स ऑफ द हाउस, दे आर वॉचिंग न्यूज चैनल्स। महिलाएं न्यूज नहीं देखती, वो एंटरटेनमेंट चैनल्स देखती हैं, सीरियल्स देखती हैं। यूथ स्पोर्ट्स देखता है, नहीं तो मूवी चैनल्स देखता है। और बच्चे किड्स चैनल देखते हैं। ये एक परंपरागत ब्रेकअप है एक इंडियन हाउस होल्ड का। मैं उसको बदलना चाहता था, और मैंने अपने सामने ये चैलेंज रखा कि फैमिली पूरी मिलके न्यूज क्यों नहीं देखती, और क्या पूरी फैमिली को हम एक साथ बैठाकर कोई एक शो ऐसा ला सकते हैं जिसमें पूरी फैमिली देखे, फादर भी देखे, बच्चे भी देखें, ग्रैंडफादर भी देखे, ग्रैंड मदर भी देखे, मदर भी देखे। और हमारी कोशिश ये रही उसमें डीएनए में कि हम उसको किसी तरीके से एक फैमिली पैटर्न पर उस प्रोग्रामिंग को रख सकें। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस सक्सेस विद यू। अब लगभग इस बात को 6 साल होने लगे हैं। 6 साल से ये एक चैनल, ये एक न्यूज है, न्यूज शो डीएनए, जो 6 साल से लगातार हमारे देश में नंबर 1 पर बना हुआ है। तो हमने उस थ्योरी को डिफीट किया जो ये कहती थी कि अगर आप साफ सुथरा कंटेंट दिखाओगे तो आपको रेटिंग्स नहीं मिलेंगी। अगर आप बिना चिल्लाए बात करोगे, शांति से बात करोगे, तो लोग देखेंगे नहीं। लोगों को सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही पसंद है। लोग लाउड शाउटिंग ब्रेकिंग न्यूज देखना चाहते हैं। तो हमने उस थ्योरी को डिफीट किया है, और हम एक डिसरप्टर की तरह उस मार्केट में अभी भी बैठे हुए हैं, वेयर वी वांट टू डिसरप्ट this tendency where people think that only a shouting slug match can be popular and it can get you TRPs and it can get you market share. तो आप सब लोगों को मेरा ये कहना होगा कि जब भी आप अगर इस प्रोफेशन में आते हैं, हमेशा एक पॉजिटिव डिसरप्टर बनने की कोशिश कीजिए, कुछ नया रखने की कोशिश कीजिए। नेवर एवर ट्राई टू कॉपी द प्रीवियस सक्सेस मॉडल। ट्राई टू carve out और इन्वेंट अ न्यू सक्सेस मॉडल। जिसने भी पुराने सक्सेस मॉडल्स को कॉपी किया है, वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया है। ये मेरी अपनी अभी तक की लर्निंग रही है। हालांकि आई ऑल्सो थिंक दैट आई एम अ स्टूडेंट। ये प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आई हैव मास्टर्ड द आर्ट। इस प्रोफेशन में हर दिन अलग है, हर शो अलग है, हर दिन मेरा जो रूटीन होता है, मेरा शेड्यूल होता है, वो हर दिन अलग होता है। हर दिन अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। और जब मैं शो करने जाता हूँ रात में 9 बजे, उससे पहले ऐसा लगता है जैसे हर रोज एक एग्जाम दे रहा हूँ। और जो आपको एग्जाम देने की जो एक स्ट्रेस होता है आपका एग्जाम से पहले, वो स्ट्रेस मैं हर रोज फील करता हूँ अपने साथ। बिकॉज मेरा हर रोज मेरा 9 बजे एग्जाम होता है, और जैसे ही वो एग्जाम 9 से 10:30 बजे खत्म होता है, उस एग्जाम का रिजल्ट भी उसी समय आ जाता है। सो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। लेकिन फन पार्ट ये है कि आप, अभी मैं ये नहीं कह सकता आपको कि मैं कल क्या करूंगा, ये मुझे कल पता चलेगा। इनफैक्ट अभी अगर 4:30 बज रहे हैं, 4:45 बज रहे हैं, तो मैं अभी आपको ये भी नहीं बता सकता कि मैं शाम को क्या करने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है अभी भी कोई नई चीज आ जाए, कोई नया सब्जेक्ट आ जाए, फिर मुझे उसके बारे में खुद पढ़ना होगा, खुद समझना होगा उसको, और फिर खुद समझ के फिर आपको यानी दर्शकों को समझाना होगा।
सो आई थिंक मैं काफी बोला। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। सर हमें बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे से इंसाइट्स आपने दिए, स्पेशली और वर्किंग इन द टीवी न्यूज इंडस्ट्री, और एक बहुत अच्छे से हिस्ट्री के बारे में बताया जो शायद बहुत बुक्स में नहीं होगी, और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपसे लाइव फर्स्ट हैंड ये सब जानने का, बिकॉज यू बीन देयर। तो थोड़ा इसी बात को आगे करते हुए थोड़ा सा ये भी बताइए कि लाइव टीवी रिपोर्टिंग में क्या चैलेंजेस आते हैं जो आपके साथ कभी ऐसे आए हुए, यू नो, गिव सम मोर इनसाइट्स इनटू दैट। थैंक यू। जी बिल्कुल। देखिए, लाइव जो रिपोर्टिंग होती है ये सबसे चैलेंजिंग फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग है। और आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। एक लाइव टीवी रिपोर्टर और एक प्रिंट अखबार के रिपोर्टर में क्या फर्क होता है। अगर अभी अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाए, या अभी अगर आप सोचिए कि चाइना की सेना, चीन की सेना हमारे ऊपर एक हमला कर दे, और एक मिसाइल चीन की दिल्ली में या मुंबई में या कहीं भी आगे जाके गिरे, तो हमें उसकी रियल टाइम रिपोर्टिंग करनी है, अभी की अभी, साथ के साथ। मेरे पास सिर्फ कुछ सेकंड्स होंगे ये स्टडी करने के लिए कि ये जो मिसाइल गिरी है ये किस मेक की मिसाइल है, ये कहां से आई है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसका नुकसान क्या है, पहली बार कब बनी थी, कैसे इसको छोड़ा गया होगा, इसके पीछे क्या मंशा रही होगी, और इसके बाद आगे क्या होगा, पूरा की पूरा एनालिसिस। अगर एक मिराज 2000 फाइटर जेट क्रैश हो जाता है, या कोई और फाइटर जेट क्रैश हो जाता है कहीं, हमारे पास कुछ सेकंड होते हैं आपको ये बताने के कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, फाइटर जेट की मेक क्या थी, स्पेसिफिकेशंस क्या थी, ये कहाँ बनता है, ये कितने साल पुराना था, पायलट की गलती थी या टेक्निकल स्नैग था, सब कुछ। इस समय भारत के पास इस तरह के कितने फाइटर जेट्स हैं, कब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, कैसे पता चलेगा। कोई भी चीज हो, मतलब उदाहरण आप कोई भी देख लीजिए। अभी आपको याद होगा कोची में एक मैं तैयार हो रहा था अपने 9 बजे के शो के लिए। 8-9 बजे का अगर मेरा शो होता है तो हम 8:50 8:55 पे मैं स्टूडियो में पहुंच जाता हूँ। उसके बाद माइक वगैरह सब ठीक हम अपना एडजस्ट कर रहे होते हैं। उसी वक्त एक खबर आती है कि एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हो गया, और हम सब कुछ ड्रॉप कर रहे हैं और इस प्लेन क्रैश के ऊपर ही आपको रहना है। और मैं स्टूडियो के अंदर हूं, टोटली कट ऑफ फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, और मेरे कान में पीसीआर कनेक्टेड है और लोग मुझे बता रहे हैं आके कि धीरे धीरे इंफॉर्मेशन आ रही है कि प्लेन यहां से दुबई से आ रहा था, मान लीजिए उसके अंदर इतने लोग थे, अच्छा एयर इंडिया का प्लेन था, इस कंपनी का प्लेन था, वो बारिश हो रही थी इसलिए स्किड कर गया। और फिर धीरे धीरे, और उस एक लाइन की इंफॉर्मेशन जो मुझे 8:55 पर मिली है, उस पर मुझे 9 से लेके 10:30 बजे तक 1.5 घंटे तक उस एक लाइन की इंफॉर्मेशन के आधार पर मुझे पूरा शो करना पड़ा। तो लाइव जो रिपोर्टिंग होती है वो बहुत चैलेंजिंग होती है, लेकिन उसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज देर आर नो रीटेक्स। आप लाइव हैं, आपके मुंह से एक गलती, एक शब्द इधर उधर निकल गया तो उसको त्रुटि माना जाता है, वो गलत माना जाता है। वेयर एज जो अखबार के लोग होते हैं, उसे अगर इस समय कुछ हो जाता है, कोई बड़ी घटना हो जाती है, तो उनको 5 घंटे मिलते हैं। इन 5 घंटों में, 4 घंटों में, 2 घंटों में, जितना भी उसको समय मिलता है, दे कैन टॉक टू डिफरेंट एक्सपर्ट्स, दे कैन टेक ऑफिशियल व्यू पॉइंट्स, वो उस पूरे सब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से एक मुकम्मल एनालिटिकल रिपोर्ट तैयार करके अगले दिन अखबार में छाप सकते हैं। इसलिए कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि अखबार में जो रिपोर्ट छपती है अगले दिन, वो बहुत विस्तृत छपती है, वो बहुत सधी हुई रिपोर्ट होती है। और टीवी में जब आप देखते हैं तो कई बार टीवी में आपको ऐसा लगता है कि रिपोर्टर जो बता रहा है वो इधर उधर जानकारी ओवरफ्लो कर रही है, भाग रही है। समटाइम्स इट्स नॉट इवन वेरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। वो इसलिए क्योंकि ही इज रिपोर्टिंग ऑन अ रियल टाइम बेसिस, और उसके पास जैसे जैसे जानकारियां आ रही हैं वैसे वैसे वो आपको देता जा रहा है। जी। So we have some questions on our chat box. I request all of you to kindly write the questions on the chat box. So we have
one question by Khushi Gupta, that how to cope up with the challenges or difficulties throughout the journey, as many says that it's quite difficult for girls to do the same, because this is a girls college, many of the students are girl aspirants for journalism. So what are the difficulties for girls in this profession is what she wants to know. Okay, so I think it's a very big misconception that this profession is especially harsh on girls compared to the males. हमारे न्यूज रूम में लड़कियां भी काम करती हैं, लड़के भी काम करते हैं, और मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया. इनफैक्ट अभी मैं जहां बैठा हुआ हूँ, ये एक चैनल है हमारा अंग्रेजी का, वियोन चैनल तो इज बीइंग हेडेड बाय अ गर्ल. और आपने देखा होगा बड़ी संख्या में हमारे पास जो न्यूज कास्टर्स हैं वो भी लड़कियां होती हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री के कुछ रिदम्स होते हैं. हर इंडस्ट्री के अपने कुछ रिदम्स हैं, हर इंडस्ट्री अपने उन रिदम्स पे ही काम करती है. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अलग रिदम्स हैं, मेडिकल इंडस्ट्री के अलग रिदम्स हैं, इसी तरह न्यूज इंडस्ट्री के अलग रिदम्स हैं. तो न्यूज इंडस्ट्री, जैसे हमारा जो दफ्तर है या कोई भी न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो 24 घंटे काम करती है. यानी मेरा जो ऑफिस जहां मैं बैठा हुआ हूं, ये पूरे 24 घंटे 24/7 365 डेज खुला रहता है. हमारा ऑफिस में 1 घंटे के लिए क्या, 1 मिनट के लिए भी इस पूरे ऑफिस में लाइट बंद नहीं होती है. ऑपरेशंस 1 मिनट के लिए भी रुकते नहीं है. हम 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं, और उसमें नाइट शिफ्ट भी होती है, दिन की शिफ्ट भी होती है, शाम की शिफ्ट भी होती है. और उन तीनों शिफ्ट्स में लोगों को बराबर बांटा जाता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, चाहे वो कोई भी हो. अब जैसे रिपोर्टिंग में लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, और तो सबको बराबर का मौका मिलता है, अनलेस समबडी वांट्स टू टेक अ बैक सीट. अब मान लीजिए ये किसी के साथ भी हो सकता है. अगर मैं किसी को कहूं कि मैं नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहता हूं और मुझे नाइट शिफ्ट करने में कोई प्रैक्टिकल समस्या है, तो मेरे ऑफिस के ऊपर होगा कि वो मुझे कितने दिन तक ये एग्जेम्पशन दे सकता है. लेकिन शायद हमेशा के लिए वो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी. या मान लीजिए आपको किसी दिन ऐसी शिफ्ट में रखा गया जिसमें आपको सुबह 6 बजे पहुंचना है. सर्दियों के दिन आपको सुबह 6 बजे अगर ऑफिस में आना है. अब हमारा जो पहला न्यूज बुलेटिन होता है वो 6 बजे होता है, और वो न्यूज कास्टर, इफ शी हैपेंस टू बी अ वुमन, तो उसको अपने घर से 3 बजे निकलना पड़ेगा. सर्दियों के दिन में वो 3 बजे निकलेगी, 4-4:30 बजे ऑफिस आएगी, उसके बाद अपना न्यूज बुलेटिन प्रिपेयर करेगी, एंड शी विल बी ऑन एयर एट 6. सो ये कुछ, एंड दिस इज नॉट इजी. तो हमें ये देखना होगा कि हमारा पूरा जो इकोसिस्टम है जहां से हम आते हैं, उस इकोसिस्टम में हमारी फैमिली भी है, उस इकोसिस्टम में हमारे और बहुत सारे हमारी लिमिटेशंस भी हो सकती हैं. वो हमें किस हद तक सूट करता है इस प्रोफेशन के लिए. इस प्रोफेशन की एक ही प्रॉब्लम है, इट्स अ 24/7 प्रोफेशन. It does not allow you to have weekends. It does not allow you to, go on long vacations. और ये कभी भी कुछ भी हो सकने वाला प्रोफेशन है. आप आज संडे को अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, या आज आप किसी शादी में जाने का प्लान कर रहे हैं, आपके यहाँ कोई फैमिली डिनर है, और अचानक कोई बहुत बड़ी खबर आ जाती है, एंड यू हैव टू लीव एवरीथिंग एंड रश टू ऑफिस. इट हैज हैपेंड विद मी all the time. I've been facing this situation for the last 27 years. And उस दौरान मेरी फैमिली ने भी बहुत शोर मचाया होगा, बहुत मैंने उनको डिसअपॉइंट किया होगा. मेरे और सोशल सर्कल में जो लोग रहे होंगे उन्हें भी मैंने बहुत डिसअपॉइंट किया होगा. बट ये प्रोफेशन ऐसा ही है. तो इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि लड़का और लड़की का कोई भेद है. यू विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इसमें कोई दो राय नहीं है. आपके पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज हैं किसी भी लड़की के लिए या लड़के के लिए. अब यह है कि उसके बाद आप कितना जोर लगाना चाहते हैं. जब मैंने ये करियर में अपनी शुरुआत की थी, तो मैं ये जानता था कि संडे को सारे सीनियर जो लोग थे, जो मुझसे सीनियर थे, एंड आई वाज द जूनियर मोस्ट, सब सीनियर्स संडे को छुट्टी लेते थे. और संडे को बड़ी हेडलाइन, बड़ी स्टोरी होती थी, उन्हें करने के लिए कोई नहीं. Sneha, can we ask you to be quiet, Sneha? Sneha. तो मैंने जानबूझ के संडे को ऑफिस आना शुरू किया, so that I have an added advantage over others.
so that I start getting big assignments and big stories, क्योंकि संडे को कोई आता नहीं था। तो ये आपके ऊपर है, आप कितने जज्बाती हैं, पैशनेट हैं, और आप कैसे अपना एक वर्क एथिक्स उसके आसपास रखते हैं। बट आई डिसएग्री विद दिस फैक्ट, अगर किसी ने कभी आपको बताया है कि लड़कियों के लिए कोई प्रॉब्लम है, एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम। दिस प्रोफेशन इज एज क्लीन एज एनी अदर प्रोफेशन, और आपको आपके टैलेंट के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। That's said very nicely, और हमें ये भी बहुत पता लग गया कि वर्क एंड लाइफ का बैलेंस कैसे चल रहा है और इस प्रोफेशन में कैसे है। ऐसे ही डॉक्टर्स के साथ भी ऐसे, और कितने प्रोफेशंस हैं उनके साथ भी ऐसे है। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि बच्चों के ये क्वेश्चंस भी थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं जितना आपके पास टाइम होएगा। Sure. एंड कुछ बच्चों ने लिखा है वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन कि डिजिटल मीडिया आजकल इतना आ गया है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है ऑन टीवी ब्रॉडकास्टिंग, स्पेशली फॉर न्यूज, एंड उस पर आप कुछ बताइए। देखिए, जब सिर्फ अखबार छपते थे तो रेडियो आया, तो लोगों ने कहा कि रेडियो आने के बाद अखबार खत्म हो जाएंगे। फिर रेडियो के बाद टीवी आया, तो लोगों ने कहा रेडियो खत्म हो जाएगा क्योंकि टीवी आ गया है। फिर टीवी के बाद इंटरनेट आया, तो लोगों ने कहा कि अब टीवी भी खत्म हो जाएगा, अखबार भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि इंटरनेट आ गया है। मैं इस थ्योरी से डिसएग्री करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि कोई भी फॉर्मेट खत्म नहीं होगा, सब लोग सरवाइव करेंगे। The only thing is that they will have to reinvent themselves. तो आपने देखा होगा अखबारों ने अपने आप को रीइन्वेंट किया, रेडियो ने अपने आप को रीइन्वेंट किया। अब जिस तरीके से आप आरजेस देखते हैं आज और एफएम स्टेशंस को देखते हैं, रेडियो ने अपने आप को रीइन्वेंट करके अपनी एक जगह बनाई। उन्होंने देखा कि मेरी प्लेसमेंट आपके जीवन में कहाँ है। और डिजिटल को अगर आप टू बी मोर स्पेसिफिक, digital is the future right now. If you ask me, digital medium is going to overshadow everything, whether it's TV, radio, print, everything. Digital is going to be very, very big in coming years. Right. तो इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन डिजिटल में भी अभी बहुत सारी चर्निंग होनी बाकी है। एक चीज एज अ स्टूडेंट आपको समझना चाहिए, मैं हमेशा एक वर्ड आपको जो बोलता हूँ, रिदम्स, the rhythms of the industry and rhythms of your life, the format, the news format or the content you are going to consume depends on the rhythms of your life. और 1.5 मिनट में मेरा ये एग्जाम्पल आप सुनो। आप सुबह जब सबसे पहले उठते हैं, आप सबसे पहले अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं और उसमें व्हाट्सएप चेक करते हैं। ये आपका पहला कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं। फिर आप उठते हैं, उसके बाद आप शायद अखबार पढ़ते हैं, अगर आप में से कुछ लोग अखबार पढ़ते हो। मेरे जैसे जो लोग हैं, मैं अखबार पढ़ता हूँ उसके बाद। यानी मैं पहले सोशल मीडिया पर आया, फिर प्रिंट मीडिया पर आया, यानी मैंने अखबार पढ़ा। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए टीवी देखा, यानी फिर मैं टीवी पर गया। फिर मैं दफ्तर के लिए निकला गाड़ी में बैठ के, गाड़ी में मैंने एफएम शुरू किया, तो नाउ आई एम कंज्यूमिंग कंटेंट ऑन रेडियो। उसके बाद मैं ऑफिस पहुंचा, और ऑफिस में पहुंचने के समय मैंने कंटेंट कंज्यूम किया ईदर ऑन माय लैपटॉप, तो मेरा फिर से फॉर्मेट बदल गया, या डेस्कटॉप। दिन भर मैं डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल फोन पे अपना कंटेंट कंज्यूम करता हूं। फिर मैं वापस घर के लिए निकला। ये मैं मेरी नहीं, मतलब मैं एक आम आदमी की बात बता रहा हूं आपको, उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। शाम को जब आप अपने घर जाते हैं, अगर आप कार में जा रहे हैं, यू विल अगेन स्विच टू एफएम। अगर आप मेट्रो में जा रहे हैं तो आप वापस अपने फोन पे स्विच करेंगे, लेकिन उस समय मेट्रो में आप लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट देखेंगे। यानी हो सकता है आप कोई फिल्म देखेंगे, सीरीज देखेंगे, 5 मिनट 10 मिनट का कोई लंबा वीडियो क्लिप देखेंगे, उसको हम लॉन्ग फॉर्मेट कहते हैं। जब आप सुबह सुबह होते हैं, सुबह आप लॉन्ग फॉर्मेट कंज्यूम नहीं करते, सुबह आप शॉर्ट फॉर्मेट कंज्यूम करते हैं, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 25 सेकेंड्स। फिर आप घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद आप मोबाइल के बाद सीधे टीवी पे जाते हैं, एंड देन यू कंज्यूम टीवी। और टीवी कंज्यूम करने के बाद जब आप सोते हैं, देन अगेन यू पिक अप योर मोबाइल फोन एंड यू सी लास्ट टाइम व्हेन यू बिफोर यू स्लीप यू चेक योर फोन, और फिर आप फोन से कंज्यूम करते हैं। यानी एक ही दिन के अंदर आपने इंटरनेट से लेकर रेडियो, टीवी, प्रिंट,
सब कुछ आपने कंज्यूम किया, डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन, डिपेंडिंग ऑन योर शेड्यूल, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग एंड वेयर आर यू गोइंग एंड हाउ यू आर ट्रैवलिंग। तो कोई भी चीज हिलेगी नहीं, सब चीजें वहीं रहेंगी। बट यस, इंटरनेट अभी, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं मीडिया के, वो अभी आने शुरू हुए हैं। सबसे ज्यादा एक्सपेंशन अभी आपको वहीं देखने को मिलेगी। इट विल एक्सपैंड एट अ मच मच फास्टर पेस देन टीवी, रेडियो और प्रिंट। जी sir, very nicely said. There are some children, students who are asking about media trials, जो कि हम आजकल देख रहे हैं कैसे केस पर बातचीत हुई जा रही है 24 घंटे एक दिन में। तो आपका इसके बारे में कुछ इन जनरल बताइए। देखिए, मीडिया ट्रायल एक ये दुधारी तलवार है। आप इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे के लिए कर सकते हैं तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब आप मीडिया ट्रायल्स को ट्रैश करते हैं तो उससे पहले ये सोचिए, इस देश में जो पहला बड़ा डिफेंस घोटाला हुआ था, जिसको कहते हैं बोफोर्स घोटाला, आप लोग तो बहुत छोटे रहे होंगे तब, बहुत आपको पता नहीं होगा, या शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, तब राजीव गांधी की सरकार थी यहाँ। बोफोर्स घोटाला मीडिया ने सबसे पहले देश के सामने उजागर किया था। 2G घोटाला मीडिया ने बताया, कॉमनवेल्थ घोटाला मीडिया ने बताया, उसके अलावा कोल स्कैम मीडिया ने बताया। यानी जो स्कैम, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें मीडिया ने बताई। अब दूसरा एग्जांपल सुनिए, जेसिका लाल मर्डर केस। सोच सकते हैं आप, अगर मीडिया नहीं होता तो जेसिका लाल मर्डर केस में जो दोषी है वो उसी दिन छूट गया होता। छूट गया नहीं होता, छूट गया था, और उसको कभी सजा नहीं होती अगर मीडिया नहीं होता। अगला केस देखिए, निर्भया। निर्भया के केस में किस तरीके से मीडिया ने डे टू डे बेसिस पे हर रोज अदालत से उसके बारे में रिपोर्टिंग की और पूरे देश को बताते रहे कि क्या हो रहा है। ये कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं जहां मीडिया ट्रायल हुआ है, लेकिन पॉजिटिव तरीके से हुआ है, लोगों में जागरूकता आई है। आपने देखा होगा निर्भया के बाद नए कानून बने, नई तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी, बहुत सारी चीजें हुई हैं। हालांकि असर कुछ नहीं हुआ, ये अलग बात है, बट मीडिया ने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया। ये मीडिया की कुछ अच्छी बातें हैं। लेकिन इसी ट्रायल को जब आप दूसरी तरफ ले जाते हैं, और कई जगह नाइंसाफी भी होती है, जैसे आरुषि का केस था। आरुषि के केस में आरुषि के साथ बहुत नाइंसाफी हुई और मीडिया दूसरी तरफ चला गया। अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी वही हो रहा है। हर न्यूज चैनल के स्टूडियो में एक अदालत बैठी हुई है, वहीं पर पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, वहीं वो एंकर जज बन जाता है। सो आई एम अगेंस्ट दिस। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं मीडिया में रहता हूं इसलिए मैं डिफेंड करूंगा, ये चीज डिफेंड नहीं की जा सकती। लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब इसलिए हो रहा है कि जो चैनल जितना ज्यादा मीडिया ट्रायल इस तरह का करता है, उसकी रेटिंग्स उतनी ही ज्यादा आती है। और आपने देखा होगा टीआरपी घोटाला भी हुआ, जिसमें यह पता चला कि कैसे चैनल्स टीआरपीज को मैनेज करते हैं। अब उसके बाद से हुआ यह है कि आज से 4 महीने के लिए, 12 हफ्तों के लिए, 3 महीने के लिए सारे न्यूज चैनल्स की टीआरपी पर रोक लगा दी गई है। यानी अगले 3 महीने किसी भी न्यूज चैनल की टीआरपी जारी नहीं की जाएगी। सारे न्यूज चैनल्स बिना टीआरपी के चलेंगे। उन्हें नहीं पता होगा कि किसकी क्या टीआरपी है, और उस टीआरपी सिस्टम को फिक्स किया जाएगा। सो ये जो मीडिया ट्रायल है, ये एक टीआरपी का श्योर शॉट फॉर्मूला बन गया है। और लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जितना सुशांत सिंह पे शोर मचाऊंगा, या और जो दूसरे केसेस हैं, जितना मैं हाथरस पे शोर मचाऊंगा, मुझे उतनी ज्यादा टीआरपी मिलेगी और मेरा चैनल उतना ज्यादा दिखेगा। तो ये व्यूअरशिप को, टीआरपी को लूटने के वो है। और जिस भी चीज में बेईमानी आ जाती है, जब वो इनऑर्गेनिक बन जाता है, यानी वो हाथरस में विक्टिम के लिए नहीं हो रही है वो कवरेज, सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए नहीं हो रही है, ये टीआरपी को लूटने के लिए हो रही है, इसका मतलब इसमें कहीं बेईमानी आ गई। तो जब बेईमानी आ जाती है तो फिर आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। निर्भया में बेईमानी नहीं आई थी मीडिया के मन में, इस बात को हमें याद रखना चाहिए। इसी तरीके से जेसिका लाल में भी बेईमानी नहीं थी, बोफोर्स में बेईमानी नहीं थी। तो जहां आपको खोट दिखेगा वहां फिर आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। बट दिस इज नॉट राइट, वट एवर इज हैपनिंग इज नॉट राइट।
लोगों को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि हम वी डोंट वांट टू वॉच सच कंटेंट. सर वेरी फाइन, यू सेड इट इन अ वेरी नाइस वे, और बिल्कुल बच्चों को बहुत ही इंस्पायरिंग आंसर लगा होगा और हम सबको लगा है. Another question, if I may take, is about the media owned by politicians and big businessmen. Will it affect the credibility of media, especially news? I believe yes, to a certain extent it does affect the credibility of the media. और ये जब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मीडिया में आए तो उनके पीछे एक खास जो भाव था उनका आने का, वो ये था कि हाउ टू कंट्रोल दिस सॉफ्ट पावर. तो मीडिया की, आप जानते हैं, न्यूज चैनल की एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है. उस सॉफ्ट पावर को anybody who has got money and deep pockets would definitely like to control that soft power. लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आपने उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को तो कंट्रोल कर लिया है, लेकिन क्या लोग भी उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को, उस मीडिया प्रोडक्ट को देख रहे हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो इसलिए अगर आज एक पॉलिटिशियन ने या किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना एक चैनल खोल लिया या अखबार खोल लिया, तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. सक्सेसफुल तभी होगा व्हेन इट इज अ गुड प्रोडक्ट. इसलिए आपने देखा होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने भी अखबार शुरू किया था और मुकेश अंबानी ने भी अखबार शुरू किया था, और इस देश में बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं और पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने अखबार शुरू किए थे. पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने माउथ पीस बनाए थे, शुरू किए थे, लेकिन वो चले नहीं, और आज भी अगर चल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि लोग उनको पढ़ते हैं. एग्जाम्पल आपको देता हूं, नेशनल हेरल्ड एक अखबार है, आई एम श्योर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा होगा, बट नेशनल हेरल्ड वाज फाउंडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, और अब अभी भी कांग्रेस पार्टी का वो माउथ पीस है और अभी कांग्रेस पार्टी उसको चला रही है. सही बात है, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो पढ़ते ही नहीं उसको, आप लोग भी नहीं पढ़ते. एक अखबार है जिसका नाम है सामना, वो शिवसेना का माउथ पीस है. आई एम श्योर आपने नहीं पढ़ा होगा, महाराष्ट्र में कुछ हद तक पढ़ा जाता है, लेकिन अब ये आपकी मर्जी है, आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते. आप ना पढ़ के उस पूरे अखबार की हवा निकाल सकते हैं. सो इस बात से कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट या पॉलिटिशियन अपना एजेंडा उस अखबार में मिलावट उसकी करने लगेगा अपने एजेंडे की, तो वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल ही नहीं होगा. लोग उसको नकार देंगे और फिर उसका फायदा ना तो उस पॉलिटिशियन को होगा, ना उद्योगपति को होगा, ना ही किसी और को होगा. एंड फाइनली दैट वेंचर हैज टू बी शट डाउन. Right, sir. Very nicely, very in a well balanced way we have understood it. और बच्चों के एक दो और क्वेश्चंस भी हैं, वो भी हम ले लेते हैं. Yeah, sure. और उसके बीच में मैं एक हट के क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क, एंड दैट इज कि आपने इतने इसमें चैलेंजेस बताए हैं, और यू नो देयर इज अ वेरी डिफिकल्ट कि किसी भी टाइम कोई असाइनमेंट आ जाती है, फिर भी जो लोग मीडिया को हुक ऑन, you know, get hooked onto it. So what makes you go on into this field? What, because you have an option, you have choices now at this stage of your life, what makes you carry on with this? I think one is passion. You have to be very, very passionate about your profession, and especially this news industry. तो अगर आप बहुत passionate हैं, तो मैं अगर इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं बहुत पैशनेट हूं. सेकंड, आई कैन फील दैट रिलेशनशिप विद माय व्यूअर्स. तो हमारे करोड़ों व्यूअर्स हैं जो हर रोज हमें देखते हैं. ये मेरे लिए और हमारे चैनल के लिए उन व्यूअर्स से मिलने का एक बहुत अच्छा मौका होता है. टू टच मिलियंस ऑफ लाइव्स एवरी डे, इट्स अ बून. कितने लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि आप जो कह रहे हैं वो करोड़ों लोग उसको सुन रहे हैं और उस पर विश्वास कर रहे हैं, और आप उनके जीवन को अच्छा भी बना सकते हैं, उनको और बेहतर बना सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं. सो ये एक ऐसी चीज है जो शायद एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग इट, यू ऑटोमेटिकली फील नाइस, यू फील I would not say empowered, but I would say that you feel responsible for them. कि मुझे वहां आज हर रोज जाना ही है. So many people must be waiting for me.
और एक इस इंडस्ट्री में काम करते करते आपको एक एड्रेनल रश की आदत पड़ जाती है। तो वो मैं हर रोज समझ लीजिए कि 8 बजे से लेके और 10:30 बजे तक 2-3 घंटे के लिए जबरदस्त एक एड्रेनल रश होता है, वो मैं फील करता हूँ अपनी बॉडी में। और उसकी एक ऐसी आदत आपको बन जाती है कि जिस दिन आपको वो नहीं मिलता है, यू फील आउट ऑफ प्लेस, आपको लगता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो कई बार अब ऐसा लगता है मुझे, मेरे जैसे लोगों के लिए, कि हम लोग अब किसी और प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हम 10 to 5 जॉब कर नहीं सकते, हम अब 5-6 बजे घर नहीं जा सकते। It will be a very very unusual day for me if I reach Yeah. my home at 6 any day, all out of all 7 days in a मैंने Yeah. पिछले 27 साल से ना तो कभी सनराइज देखा है और ना ही सनसेट देखा है। अरे बाप रे। ठीक है, like you said, it's a matter of passion. जी जी बिल्कुल। ओके, एंड ऑल्सो ये बताइए, अब जैसे आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या लगता है कि अब हमारे कंट्री के सामने मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं, और जिनका कि हल हो सके, जो कि यंग जनरेशन चाहेगी कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए कि जो हम भी उनको टैकल कर सकें। तो कुछ चीजें तो ठीक है, टाइम लेंगी, पर कुछ चीजें आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ है क्या कि यंग जनरेशन को इंस्पायर है? ऑल राइट, ऑन दिस वी कैन वर्क certain big things, they will take more time, but certain small oriented small term goals. आई थिंक मुझे जो लगता है वो ये कि एक ऑर्बिट शिफ्ट की जरूरत है हमारे देश में। द वे वी थिंक, द वे वी आर ब्रॉट अप, the way we are being taught in our schools, colleges, and the way we later on pursue our careers, it needs a very very big shift. आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज भी हमारे देश में ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे क्यों, वो ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि मुझे देश की सेवा करनी है या मुझे सरकार की सेवा करनी है या सरकार के जो विभाग हैं दे आर मच मच मोर प्रोफेशनल और दे आर मोर कॉम्पिटेंट, वहां आपको काम ज्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा। बेसिक जो थॉट है हमारे यहाँ वो है परमानेंट नौकरी। ये एक शब्द हमारे यहाँ सबको चिपका हुआ है कि मुझे पक्की नौकरी चाहिए, परमानेंट नौकरी चाहिए, वो छूट ना सके, चाहे मैं ऑफिस जाऊं या मैं ना जाऊं, मुझे परमानेंट नौकरी रहे, मेरी नौकरी चलती रहे, उसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा छुट्टियां मिले। मेरे पास भी जब मैं यहाँ हम होते हैं और बहुत सारे जो यूथ हैं वो इंटरव्यू के लिए आते हैं लोग, तो मैं कई बार उनसे उनका भाव जानने के लिए कहता हूं कि विल यू लाइक टू हैव अ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट विद अस और यू विल लाइक टू वर्क ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो 6 महीने का, 1 साल का कर लो, 2 महीने का कर लो, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, देन वी विल रीनेगोशिएट विद यू। इफ यू आर अ गुड वर्कर वी माइट इंक्रीज योर सैलरी। रीनेगोशिएशन में फायदा ये है कि आपकी सैलरी 200% ऊपर तक भी जा सकती है और आधी भी रह सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू हैव परफॉर्म्ड। या आप परमानेंट नौकरी लेना चाहते हो और हर साल 5% का इंक्रीज लेना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल से आई वांट अ परमानेंट जॉब विद 5% इंक्रीज एनुअली। ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि आई विल वर्क ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट of 90 days. After 90 days, I will renegotiate with you with fresh terms and conditions. एक ये चीज अगर हम कर लें, और ये चीज मैम आएगी स्किल से। योर डिग्रीज कैन नेवर गेट इट। आप डिग्रीज लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट बनिए, पीएचडी बनिए। आपने ऐसी खबरें, मैंने कुछ दिन पहले खुद वो खबर बताई थी, उत्तर प्रदेश में चपड़ासी की नौकरी के लिए पीएचडी किए हुए लोग अप्लाई कर रहे हैं, चपरासी की नौकरी के लिए मास्टर्स किए हुए लोग अप्लाई कर रहे हैं। सो दैट मीन्स वी समवेयर वी आर लैकिंग द स्किल सेट, वहां हम भटक गए। ये एक चीज अगर हमने सुधार ली, स्किल, आई एम अ स्किल्ड पर्सन एंड आई नो हाउ टू सेल माई स्किल्स एंड आई नो हाउ टू सर्वाइव बेस्ड ऑन माई स्किल्स। आई एम अ सर्वाइवर, आई डोंट नीड अ परमानेंट जॉब, I don't need a permanent assurance कि अब मैं 60 साल तक यहीं रहूंगा, उसके बाद मुझे पेंशन मिलेगी और फिर मैं जीवन भर बैठ के खाऊंगा। इस चीज को अगर हमने छोड़ दिया, इंडिया विल बी मच 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 अहेड।
बिल्कुल rightly said, sir. At the end, I would like to ask you कि क्या आपका चैनल हमारे स्टूडेंट्स को internship and then possibility of some kind of work experience, क्या is it open for that? Does it open for other students? Do they intern? Because some of them are journalists and some of them are very good content developers, because we do a lot of such work in our college where जी students learn to write about script writing for radio, and we analyze a lot of TV scripts, and then they have a practice run of writing for the scripts. But they're always rooted in DevCom, that is the problems of the country, but in an entertainment way. So is there any scope for such kind of thing, to give a platform to young aspiring students and then check them out? Definitely. I mean, Yeah. I would say all of you are most welcome to come here. We have our HR department. हमारे पास देखिए दो तरह की situations होती हैं. Sometimes we are full, we are not hiring at all. But even then, even if we are not hiring people, we are still on a lookout for fresh minds, talented people, good people. अच्छे लोगों की सबको तलाश होती है. आप भी इंटर्नशिप के लिए आ सकते हैं, बट इंटर्नशिप की भी हमारी एक लिमिटेशन होती है. हम सैकड़ों और हजारों की संख्या में इंटर्न्स को नहीं ले सकते, और भारत में इंस्टीट्यूट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, तो हम लोग लेते हैं, बट देन वी टेक इंटर्न्स बेस्ड ऑन मेरिट. तो हम लोग मिलते हैं लोगों से, मिलने में किसी से भी कोई बुराई नहीं है, बट अगर हमें लगता है कि दिस स्टूडेंट इज एक्सेप्शनली गुड, दिस स्टूडेंट कैन बी डेवलप्ड लेटर इन अ वेरी गुड, इनटू अ वेरी गुड प्रोफेशनल, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट बन सकता है, तो हम लोग उनको लेते हैं और हम जरूर मिलते भी ऐसे लोगों से. सो मैं आपको ये कहूंगा कि आप हमारे एचआर डिपार्टमेंट से जरूर, यू शुड बी इन कांटेक्ट विद देम, और जब आप अपना सीवी वहां भेजेंगे तो वी विल डेफिनेटली कॉल यू, और बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस ऑन इंटरव्यूज और एग्जाम्स, व्हाटएवर इज द प्रोसीजर, then we will definitely have some of you here. Right. And also some of the students are writing that, especially in times of pandemic, they're not going to come and visit, so they're quick to catch on. So No, surely, work अभी तो from जैसे home हम लोग, possibilities. या तो जैसे अभी हम लोग एक दूसरे से भी बात कर रहे हैं, we can be digitally connected Yeah. during that time, Right. and sure, why Right. not? So Yes. to the specific answer to your question is yes, we are open to internship, and we'll definitely consider, if not all, then some of you. Yes, obviously. Yes, sir. So I think now I May I request. ask one Yes. question, ma'am, please? Yes, please. Sure, please Prabjot go is ahead. a faculty at our college. Okay. And my question is that, we teach ethics in media. And students all often ask this question that how ethically they can practice in real, scenarios when they have to go to work, and there's a lot of pressure. And then you also talked about that who is our customer? Is it they have to work for the advertisers or they have to work for the, the audience? So if you can just highlight that how ethics are being followed, or how much we can follow the ethics. Okay. So one thing which has been taught to us in every institute. I'm a pass out from Indian Institute of Mass Communication. I did my English journalism from there in 1993. हमें भी यही पढ़ाया गया था, और आज आपको भी यही पढ़ाया जा रहा होगा. एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म एक पूरा एक चैप्टर है, एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म. अब उसको आप कितना याद रख पाते हो और उसको अपने बेसिक हाइजीन में कितना आप उसको अडॉप्ट कर पाते हो, ये इट डिपेंड्स ऑन एवरी इंडिविजुअल. सिमिलरली इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस किस न्यूज रूम में कितनी एथिकल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट, it depends on the person who's leading that newsroom, it depends on a lot of factors. It is like जैसे डॉक्टर्स के केस में है, लॉयर्स के केस में है, डॉक्टर्स एक ओथ लेते हैं कि वो हमेशा एथिकल रहेंगे, लेकिन सारे डॉक्टर्स एथिकल नहीं रहते. वकीलों को भी एथिकल होना चाहिए, लेकिन नहीं रहते हैं. पुलिस में जो लोग आते हैं वो भी ये शपथ लेके आते हैं कि वो हमेशा निष्पक्ष भाव से काम करेंगे. तो
जो डेविएशन है छोटा मोटा वो हर जगह होता है, वो मीडिया में भी वो डेविएशन है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं है, इट इज देयर। लेकिन आपकी मर्जी के खिलाफ आपसे कोई कुछ नहीं करा सकता। अगर आपने ये तय किया कि मेरा काम करने का बेसिक हाइजीन इन टर्म्स ऑफ एथिक्स ये है और मैं यही कहूंगा और यही करूंगा, तो कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप उससे डेविएट हो जाएं, आप आगे पीछे हो जाएं। आप किस लेवल पर ऑपरेट करते हैं? तो मैं जैसे अगर मैं आपको मेरी बात बताऊं तो मैं मेरे लेवल पे ऑपरेट करता हूं। मैं जब मेरा चैनल चलाता हूं तो मेरे हिसाब से चलाता हूं, मुझे पता होता है कि कहाँ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने आज ये एथिक्स की बात पूछी, एथिक्स, क्योंकि ये एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म ये ऐसी चीज है, अब इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये विषय सिर्फ पढ़ाने के लिए है और एग्जाम में लिखने के लिए है और नंबर लेने के लिए, मार्क्स लेने के लिए। एथिक्स एक्चुअली ये एथिक्स ही है जो अभी हमारे देश को बचा के रखे हुए हैं और अभी तक वी आर स्टिल गोइंग अभी। और जो ये नई जनरेशन है विच इज गोइंग टू टेक ओवर फ्रॉम अस, ये एथिक्स पे आगे चल के भविष्य में लोगों को प्रीमियम देना पड़ेगा, बिकॉज ये एथिक्स खो जाएंगे। सो ये तो बहुत आगे चल के बहुत ही इनकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए इन एथिक्स को आप भूलिएगा नहीं, ये एथिक्स बहुत काम आएंगे। एंड एज अ पर्सन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब आप एथिकल होते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी को एक नई ताकत देता है। आप जो बोलते हैं, जो करते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके काम में एक ऐसी चमक आती है, आपकी बातों में एक ऐसी ताकत आती है, वो सिर्फ एथिक्स से आ सकती है, वो और किसी चीज से नहीं आ सकती। तो आप उसको शायद महसूस बाद में आगे चल के कर पाएंगे, बट एथिक्स इज एक्चुअली द फ्यूल ऑफ जर्नलिज्म। इसके बिना वो जर्नलिज्म जो आग होती है वो जल ही नहीं सकती। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि इसी से असली रंग ही इसी से आता है, एथिक्स से, एक जर्नलिस्ट में। थैंक यू प्रभजोत। अब हमने आपका बहुत समय ले लिया है और हमने बहुत एंजॉय किया, हमें पता ही नहीं लगा कैसे टाइम निकल गया। और मे आई रिक्वेस्ट डॉक्टर यूकी आजाद टू नाउ टेक ओवर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सुधीर जी, आप यहाँ आए, आपने सभी बच्चों से इतनी आसानी से वो सब बताया जो शायद हम इनके 3 साल के कोर्स में सुबह से लेके शाम तक किताबें पढ़ के ना समझा पाते, जो आपने बहुत आसानी और सरल भाषा में 1-1.5 घंटे में इनको वो सबक दे दिया जिंदगी का जो इनको चाहिए था। इसके लिए मैं आपको बहुत ज्यादा थैंक यू कह रही हूँ, पर शायद ये शब्द पूरे ना पड़े। इतने सरलता से आपने इन सवालों के जवाब दिया और आपने इनको ये मौका दिया कि शायद ये आपको अप्रोच कर पाए, आपके चैनल के पास आ पाए इंटर्नशिप्स के लिए, आगे जाके अपने फ्यूचर के लिए। एंड दिस मीन्स अ लॉट, not only to us, not only to the students, but also to our college and department. This is the youngest department of Institute of Home Economics, journalism. We just started journalism few years ago here. It was development communication earlier, and now we have added one branch to it. And these are the students could connect to you. It has been amazing. और ये ऐतिहासिक दिन सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री में ही नहीं है, हमारे कॉलेज और डिपार्टमेंट के लिए भी है आज का दिन ऐतिहासिक, क्योंकि आपने आके हमको ये सारी बातें सिखाई। So on behalf of Department of Development, Communication, Extension and Journalism, students, faculty members, I thank you very much for taking out your important time and sharing your thoughts with all of us. Thank you very much, sir. Thank you so much, ma'am, and it was a great experience for me as well. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस देश के यूथ से, नए लोगों से, स्टूडेंट से बात करता हूँ, बिकॉज फाइनली यही लोग हैं जो आगे चल के they will take over and then they will run the companies and they will run news channels and newspapers. तो बहुत अच्छी बात है। जाते हुए बस एक ही बात कहूंगा, जो हमारा शुरू का विषय था TRP, never ever fall for the TRP trap। 44,000 घर हैं इस देश में, उन 44,000 घरों से ये तय होता है कि ये पूरा 135 करोड़ का देश क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है, और उन 44,000 घरों के 1.5 लाख लोग ये तय कर रहे हैं कि कौन नंबर 1 होगा और कौन नंबर 10 होगा। आप अपना रास्ता खुद बनाइए, नेवर एवर थिंक अबाउट TRP, मेक गुड कंटेंट। TRP इज अ बाय प्रोडक्ट। अगर लोग आपको देखेंगे बड़ी संख्या में तो TRP तो अपने आप ही आएगी, लेकिन TRP के लालच में कभी आप मत पड़िएगा।
ना आज, और जब आप काम करेंगे तब भी कभी मत पड़िएगा। अच्छा कंटेंट बनाओ, रेलेवेंट कंटेंट बनाओ, अच्छा जर्नलिज्म करो, पीपल विल डेफिनेटली कम एंड वॉच यू। थैंक यू सो मच एंड my best wishes. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Yeah, thank you so much.